بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل کے سبق میں جو ساتھ طبیہ کالج کی طرف سے کلاس ہوئی تھی اس میں جنات اور جادو کا علاج غذا خوراک اور دواؤں کے ذریعے سے ہم نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ جادو اور جنات اور جسمانی امراض، یہ تقسیم ہم نے اپنی تفہیم یا اپنی ضرورت یا معالجین کی تقسیم کی بنیاد پر کی ہے۔ کسی نے صرف نقش دھاگے، دھنیا، مالش اور ٹونے ٹوٹکے سے اپنا کام چلایا، لوگ معتقد تھے، اس کا بھی چلا۔ آج میں ایک جگہ گیا میں نے وہاں دیکھا کہ پیر صاحب تھے، گیا تو اس وجہ سے گاؤں میں ہمارے بڑے بھائی کی بکریاں چوری ہو گئی تھی، تو انہوں نے مجھے بھی فون کیا، تو مجھے بھی 5-7 بکریاں تھی۔ وہ وارداتیاں ایسے کرتے، ایک گاڑی کو کھڑا کرتے، دوسرا جو ہے نا چھری سے رسیاں کاٹ کے اور اسے گود میں اٹھاتے، اور بس وہ گاڑی سٹارٹ ہوتی۔ اب مالک کو کیا پتا، سامنے بھی اگر ہو تو نہیں پتا چلتا، وہ اسے لے کر فرار ہوتے۔ خیر ان کا مقدر کمزور یا قسمت کیا کھوٹ، وہ رات کو 2 بجے ہم نے وہ بھائیوں نے ادھر ادھر سے کر کے اس گاڑی کا نمبر ٹریس کر لیا۔ وہ پیر صاحب کے ہاں گئے، پھر وہ پیر صاحب میرے جاننے والے تھے، خیر انہوں نے الحمدللہ، لائن لگی ہوئی تھی پرچی سے، وہ اپنے نقش تعویذ کا کر رہے تھے۔ ایک طرف عورتیں تھی پردے میں بیٹھی ہوئی، ایک طرف مرد تھے باہر، ایک تعویذ چمڑا لے کر گانٹ رہا تھا، کوئی تعویذ کا چاندی کا تھا، کچھ ایسا تھا وغیرہ وغیرہ، اس کا اپنا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ ہر ایک سے 100 روپے لے رہا، اور میرا خیال یہ ہے کہ شام تک وہ بہت بڑی اماؤنٹ اکٹھی کر لے۔ خیر اس نے مجھے بٹھایا، بھائی کو بٹھایا، جو بات ہو رہی تھی وہ کر رہے تھے۔ خیر یہ تو تقسیم تھی۔ حکیم بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، پرچیاں دیتے ہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں، نمبر پہ اپنی دوا نبض اور غذا خوراک مشورہ جو بھی کچھ ہے وہ لے کر چلتے بڑھتے۔ یہ ہے کہ یہ تقسیم کیوں ہوئی؟ نقش تعویذ والے بھی اس چیز کے بارے میں مدعی ہیں کہ ہم ہر چیز کا علاج کرتے ہیں۔ کسی بھی عملیات کتاب کو اٹھا کر دیکھو، اس میں ہر دنیا کی مرض کا علاج ہوگا۔ آپ طب کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں، حکیموں نے اتنے باوضو جھوٹ بولے ہیں، اتنے اتنے لمبے وہ ان کے فوائد و فضائل لکھے، بپناہ خدا ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ امرت ساگر کا پیالہ اب جو ہے نا ہمیں مل گیا ہے، اب جو ہے نا یہ امرت پی کر اب ہم ہمیشہ کے لیے جی جائیں۔ لیکن جب کرتے ہیں تو وہی ڈھاک کے 3 بار۔ اصل سوال یہ ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت کیوں پیش، بات میری سمجھ رہے ہیں کہ ان چیزوں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں نے اپنی ویڈیوز میں، اسباق میں اور کتابوں میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ کوئی بھی جو مرض ہے وہ خواہ اس کا سبب ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، اس کا اثر ہمارے اس خاکی وجود پر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، قرآن کریم کہتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى، کہ جب آدمی سوتا ہے تو اس کی روح جو ہے نا یرسل الاخرى، انہیں ہم قبض کر لیتے ہیں، ایک گناہ اس کا ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں النوم اخت الموت، کہ موت جو ہے، نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے۔ ایک گناہ اس سے رابطہ رہتا ہے، باقی وہ مرے برابر، کہتے ہیں سویا مرا برابر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کی نہیں آتی ہم وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى انہیں بھیج دیتے ہیں، وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ اور جن کی موت آ جاتی انہیں ہم روک لیتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، سدا تو اللہ نے رہنا ہے، کسی نے تو نہیں رہنا۔ اب جو سو جاتا ہے اس کی روح اس کے جسم سے کافی حد تک آزاد ہو جاتی ہے، بیمار پھر بھی وہ رہتا ہے۔
تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو روح ہوتی ہے وہ بیمار نہیں ہوتی، یہی خاکی وجود جو یہ 5-7 فٹ کا ہے یہی بیمار ہوتا ہے۔ اسی کے جو اعصاب ہوتے ہیں وہ رنج و الم اور دکھ محسوس کرتے ہیں اور روح اس سے آزاد ہو۔ اگر روح بیمار ہو تو مرنے کے بعد وہ بیماری تو روح لے گئی، جسم تو رہ گیا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے ہی آدمی مرتا ہے روح آزاد ہو جاتی ہے۔ ہم نے آج تک کسی ولی، کسی پیغمبر کی باتوں میں، کسی صاحب کشف اس میں نہیں کہا کہ وہ آدمی بیمار ہو کے مرا تھا اور اس کی روح ہم نے دیکھی تڑپتی ہوئی دیکھی، وہ بیماری تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ جسم ہی ہوتا ہے۔ گو کہ روح جو ہے وہ ہمیں ایک گناہ چیز بتاتی ہے کہ ایسے اس انداز میں یہ چیز کی جاتی ہے، یعنی جو ہمارا سافٹ ویئر ہے وہ روح ہے، ہارڈ ویئر ہمارا جسم ہے۔ جیسے اس لیپ ٹاپ میں یا آپ کے فون میں یہ جو پروگرام چل رہا ہے جسے سافٹ ویئر کہتے ہیں، یہ اگر کھینچ لیا جائے، کرپٹ ہو جائے تو آپ کا یہ ڈسپلے ختم ہو جائے گا۔ آپ کا یہ جو لیپ ٹاپ ہے 10-20-50 ہزار کا، اب میرا یہ 80 ہزار کا ہے، تو وہ پھر بیکار ہو جاتا ہے۔ ہمیں کوئی بھی اپنی ضرورت کی چیز کو چلانے کے لیے اس جیسا سافٹ ویئر جس میں وہ کام کیا گیا ہے، پروگرامنگ کی گئی ہے، وہ ہم انسٹال کرتے پھر ہماری ضرورت کا کام ہوتا ہے۔ اب اس جسم میں جب بیماری آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو سب سے پہلے آدمی کھانا چھوڑتا ہے، کم کھاتا ہے، بھوک ختم ہوتی ہے، یا بہت زیادہ کھانے لگ جاتا ہے، جیسے جول بکر ہے اور جول قلب ہے، یعنی کتے جیسی بھوک ہے، وہ کھاتا رہتا ہے کھاتا رہتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، پھر وہ قے کرتا ہے۔ اور ایسے ہی وہ گائے جو ہوتی ہے اسے بیماری ایک ہوتی ہے، وہ چارہ کھاتی 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 اتنی کھاتی اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا، اس کا پیٹ یہ پھول جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو نقطہ ہے عاملین کا اور اطباء کا، وہ ہے جسم کے اندر جو تکلیف محسوس ہو رہی ہے اسے دور کرے۔ آدمی مریض ہونے کے بعد، اس سے بیمار ہونے کے بعد جو سب سے پہلے چیز متاثر ہوتی ہے وہ کھانا پینا ہوتا ہے، کم ہو جاتا ہے، کبھی کھا لیا، کبھی طلب ختم ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ جو اس کی غذائی ضرورت تھی اس میں کمی آنے لگتی ہے، اور وہ جو چیزیں جسم کی ضرورت ہوتی ہیں وہ کم ہونا شروع ہوتی ہیں اور بیماری بڑھنا شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، اب مجھے پسینہ آ رہا ہے، یہ اب یہاں سے بھی پسینہ آ رہا ہے، یہ بھی آ رہا ہے، وہ حالانکہ وہ چیز چل رہی ہے، لیکن گرمیاں ہیں، موسم ہے، یہ تو ہوگا ہی۔ اب جو ہمارے جسم پہ یہ میل آتا ہے، یہ جو ہم ہاتھوں کا ایسے رگڑتے ہیں، ایسے اوپر میل آتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ باہر سے کہتے ہیں باہر سے گرد و غبار آتا ہے، ایسا نہیں آتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن ایک آدمی اندر بیٹھا ہے، بالکل بند کمرے میں بیٹھا ہے، اسے بھی اگر پسینہ آتا ہے، جب وہ نہاتا ہے تو اس سے میل اترتا ہے، وہ گندگی کہاں سے آئی؟ اصل میں ہمارے جو جسم کا ہاضمہ ہے وہ کئی جگہ، جیسے معدے میں ہوتا ہے، جگر میں ہوتا ہے، کھال میں ہوتا ہے اور چمڑے میں ہوتا ہے، آخر میں آ کے ان حدود میں ہوتا ہے۔ یہ جو آخر میں آ کے یہاں سے جو ان کے فضلات ہوتے ہیں وہ میل کی شکل میں پسینے کے ساتھ باہر نکلتے، تو اس لیے یہ جو میل نکلا ہے یہ بھی ہمارے جسم کی ایک وقت میں غذا تھا، لیکن اب یہ ہضم ہو کے یہ غذا کے بجائے فضلہ بن چکا ہے۔ ہمارے جسم نے اسے فالتو سمجھ کر باہر دھکیل دیا ہے، مسامات کے ذریعے سے یہ اوپر آ گیا ہے، اور اب یہ میل کی صورت میں ہم نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں تو یہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اور آ جاتا ہے۔ یہ کانوں میں میل، یہ باہر سے نہیں آتا، یہ اندر سے جو اس کی ان کانوں کی جو نظام ہے اس میں جو میل آتا ہے وہ اس کی غذا کا فضلہ ہوتا ہے، وہ ہم صاف کرتے ہیں۔ ناک میں بھی ہوتا ہے، ایسے ہی ساری جگہ ہوتا ہے، آنکھ میں بھی یہ بعض دفعہ کثافت ہوتی ہے۔ اب
फुसलात जो होते हैं, जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो जो हम वॉशरूम में जाकर फ़रागत करके आए हैं, उसमें ग़िज़ा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। अब देखें ना, एक आपने एक देग पकाई या एक हंडिया पकाई। अब उसको जब आपने जोड़-जगाड़ कर उसमें मसाले डाले, गोश्त डाला या जो भी कुछ पका रहे हैं, अब उन सबको जमा करके जब आपने वो हंडिया तैयार की, अब जो हंडिया तैयार हुई है तो उसके हर ज़र्रे की कीमत इतनी है जितनी कि दूसरे ज़र्रे की। एक प्लेट अगर निकालेंगे जितनी कीमती वो प्लेट होगी, जब दूसरी में उस सालन को डालेंगे, उस खाने को डालेंगे, उसकी भी कीमत इतनी ही होगी। ब्याह शादियों में देख लें, बहुत सारा खाना बच जाता है लेकिन वो हमारी ज़रूरत का नहीं होता, उसे बर्बाद करते हैं, उसे फेंक देते हैं। वो जो दाना नीचे गिरा है या जो हमने फासिल करके अपनी प्लेट में छोड़ा है, ये नहीं कि ये बेकार है, ये भी इतना ही कीमती था कि जितना के वो जो खाया गया है, वो भी इतना ही कीमती है। अगर ये जो फेंका गया है, ये उस देग से, उस हंडिया से खारिज कर दिया जाए, तो वो हंडिया अपनी मिकदार में कभी पूरी नहीं हो सकती। यही चीज़ है। ये तो ख़ैर एक जुमला मोतरिज़ा था कि जो हम ग़िज़ा खाते हैं ना, वो एक ही जैसी रोटी, एक ही जैसा खाना होता है। अब उसमें से कुछ जितनी जिस्म को ज़रूरत थी, उसने जज़ब किया और जो इसकी ज़रूरत से खारिज था, वो इसने फुसला करके वो बाहिर कर। अब जो वो बाहिर गया है, ये नहीं कि वो बेकार है, लेकिन ये एक हमारे जिस्म को उसकी ज़रूरत नहीं थी, उससे कम मिकदार में उसका गुज़ारा हो गया, जो बाकी ग़िज़ा बची थी वो फ़ुज़ले की सूरत में बाहिर आ गई। ऐसा नहीं है वो बिल्कुल ऐसी ग़िज़ा है, लेकिन उसमें ग़िज़ाइयत बहुत सारी मौजूद होती है। ये जो मक्खी, मच्छर उसके ऊपर बैठते हैं या इससे दूसरे जानवर जो उस आदमी के फ़ुज़ले को खाते हैं, जैसे कुत्ता खा जाता है, ये खा जाता है। अगर ग़िज़ाइयत ना होती, ये क्यों खाते इसे? ठीक है? अब जो जिगर का मरीज़ होता है ना, उसका फुसला बार-बार आता है और वो बार-बार वॉशरूम जाता है और जिसका उज़लात कायम होते हैं, वो ताकतवर होता है या जो बॉडी बिल्डर होते हैं, मेहनतकश होते हैं, ये सारे, ये खाना ज़्यादा मिकदार में खाते हैं, आम आदमी की निस्बत और इन्हें वॉशरूम कम जाना पड़ता है। क्यों? कि इनके जिस्म में वो जो ग़िज़ा होती है, ज़्यादा जज़ब हो रही है। एक जो बेड पर पड़ा-पड़ा खा रहा है या बिल्कुल निकम्मा है, घर से निकला, गाड़ी में बैठा, दफ्तर में बैठा, हिल-जुल कम नहीं की और वो चलना-फिरना उसने नहीं किया। अब वो कम खाता है, उसकी भूख मरी होती है। ये देखते नहीं इनके थोड़े-थोड़े से चिड़िया जितने खाते हैं, यार 2 टोस्ट खा लिए, कहीं कोई फल खा लिया, कहीं से कोई जो है ना कार्न सूप पी लिया, कहीं से कोई यखनी पी ली, बस ऐसे इनके ग़िज़ा होते हैं। ये ठोस ग़िज़ा नहीं खाते क्योंकि इनके जिस्म को ज़रूरत ही नहीं होती। ये तो आप बात समझ गए कि जो हमारा हाशमा होता है, जो हाशमे से चीज़ बच जाती है, अगर किसी आदमी को इतनी ज़्यादा भूख लगी हो कि बस उसकी जान पे मना रही हो, बहुत ज़्यादा ग़िज़ा की कमी हो गई हो, वो ज़्यादा खाना भी खा लेगा तो उससे वॉशरूम की हाजत बहुत कम होगी क्योंकि जिस्म को ज़रूरत होती है, वो सबको जज़ब कर जाता है। बात अब मैं ये तमहीद इसलिए बाँध रहा हूँ, आपको ग़िज़ा की और इलाज में इसकी अहमियत की ज़रूरत जो है, वो वाज़ेह कर सकूँ। जिन्नात वाला भी नहीं खाता, जादू वाला भी नहीं खाता या जो है ना अब मैंने ऐसे केस देखे हैं कि जो जादू वाले होते हैं, उन्हें भूख ही नहीं लगती, बस पड़े रहते, थोड़ी बहुत खा ली, किसी ने घर वाले ने कह दिया तो खा लिया, वरना पड़ा है, उससे कोई परवाह ही नहीं है। वो असाबी मरीज़ होते हैं, उनके अंदर बलगमीर जो है ना मवाद बहुत ज़्यादा होता है, भूख खत्म हो चुकी होती है, उनके जिस्म से जो तेज़ाबियत, खार या सौदावी या यूँ लगा लें कि वो एसिड जो भूख लगाने का सबब होता है वो बहुत कमज़ोर हो चुका होता है। जैसे कि बैटरी जब चार्ज खत्म हो जाए तो उसका जो पानी होता है उसकी तेज़ाबियत कम हो जाती है। लेकिन जैसे-जैसे हम चार्ज उसका बढ़ाते हैं तो उसमें जो पानी को आप चेक कर देखें तो उसमें जो उसकी तेज़ाबियत होगी जब फुल चार्ज की बैटरी में वो बहुत ज़्यादा होगी और जब डिस्चार्ज होगा तो आम पानी की तरह उसके वो काट नहीं होती जो फुल चार्ज जो
जो कहता है ना मुझे जिन्नात आ गए और ये हो गया, वो 10-10 20-20 रोटियां, मैंने अपनी आंखों से ये केस देखे हैं, वो इतनी ज्यादा खा जाता है। उसकी वजह ये होती है उसके जो जिस्म में खून की गर्दिश होती है वो बहुत ज्यादा होती है, उसके उजलात काम कर रहे होते हैं, उसमें तेजाबियत, जिसकी भूख खत्म हो जाए आप उसके लिए उजलाती चीजें दें, खटाई दें, आप उसे सिरका दे सकते हैं, खुश्क चीजें दें, जैसे चने चबुआएं और ये किशमिश और सिरके का आप ये सालन में इस्तेमाल करवाएं तो इससे बंद भूख खुल जाती है। जब आदमी बीमार होता है, जैसा कि मैं कह आया हूं, तो सबसे पहले ग़िज़ा को छोड़ता है। ग़िज़ा से हमारी जो जिस्मानी ज़रूरत होती है, वो पूरी नहीं होती और हम दिन-ब-दिन डाउन होते जाते हैं। मसलन शुगर का मरीज़ है, वो जिस्म में उस ग़िज़ा को जो उसकी ज़रूरत है, उससे वो हज़म नहीं कर सकता। वो इंसुलिन करता है, इंसुलिन लगाता है या कुछ भी करता है, उससे होता ये है कि वो ग़िज़ा शुगर तो नहीं बढ़ाती, लेकिन वो ऐसा ही है कि जैसे इधर से खाई और नीचे से निकल गई। इंसुलिन यूँ समझिए कि ये वो डंडा होता है, जैसे हम किसी पाइप में मारते हैं ना, ऐसे वो निकाल के बाहर करता है, जिस्म को वो लगती नहीं है, ठीक है? तो इसलिए क्योंकि वो जो भी कुछ जिस्म में लगता है वो ग्लूकोज की सूरत में लगता है, यानी जो भी हम कुछ खाते हैं वो आखिर में आके वो ग्लूकोज बनता है, कार्बन बनता है, जो हमारे जिस्म में हमारे उज़लात में जलता है, बतौर ईंधन जलता है, हमारी जिस्मानी क़ुव्वत को बरकरार रखता है, हमारी हरारत को बरकरार रखता है। वो हम जो है ना इंसुलिन से वो ख़त्म कर देते हैं। तो यही वजह है अच्छे मोटे ताजे लोग भी बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता, हालाँकि उनकी खुराक अच्छी होती है, खाते-पीते होते हैं, वो कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सूख के लकड़ी हो जाते हैं, आखिर में आके उनकी शक्ल भी ऐसी बंदर जैसी निकल आती है। क्यों? कि जो चीज़ हमारे जिस्म की ज़रूरत थी, वो जिस्म में जज़ब नहीं हो रही। जैसे मैंने कल अलामात पढ़ाई थी, तो आप उन अलामात से जो अलामत देखें, उसके मुताबिक जो अद्वियात तजवीज़ करें, ऐसे ही आप ग़िज़ा भी तजवीज़ करें। तकमील जिस्म या हयाती उमूर तबीया, जब ग़िज़ा खाई जाती है, तो सबसे पहले कैफ़ियत बनती है, उसके बाद अख़लात बनती हैं, उसके बाद आज़ाद, फिर अरवा, उसके बाद कुव्वा यानी क़ुव्वत बनती है, क़ुव्वत से फ़ेल सादिर होता है। मसलन जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो हमें जो ज़ायक़ा महसूस होता है, सैराबी जो महसूस होती है, हमारे जिस्म में जो फ़रहत आती है, उसे हम कैफ़ियत का नाम दे सकते हैं। उसके बाद जब वो कुछ हज़म के बाद आगे चलती है, वो ख़लात बनती है, ख़लत, या यूँ कह लें कि जैसे हम उर्दू में आसान अल्फ़ाज़, चलो हिकमत में ना सही, उर्दू में हम ये कहें ख़लत-मलत होना, यानी रल-मिल जाना। उसके बाद इख़लात बनते हैं। सबसे पहले जो हमें सैराबी हुई है, हमें जो आसूदगी हुई है खा के, पी के, वो उसे उसको उस कैफ़ियत को हम कहते हैं कैफ़ियत। यानी अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेट भर गया है, अब मैं आसूदा हो गया हूँ, मैं सैराब हो गया हूँ पानी पीकर। उसके बाद इख़लात बनते हैं, यानी जब वो हज़म होती है तो ग़लत-मलत होती है, एक ख़ास उस ग़िज़ा से अगली सूरत जो चीज़ बनती है उसे हम इख़लात कहते हैं, ख़लत कहते हैं, और ख़लत 3 किस्म के होते हैं, जैसे सौदा, सुफ़रा और वग़ैरह। उसके बाद फिर आज़ा बनते हैं, यानी जब जैसे अब यहाँ से वो जो मैल ख़ारिज हुआ था, ज़ाहिर है कि जैसे जिस्म में वो चीज़ जो बतौर ग़िज़ा आई थी, जब वो ख़ारिज हुई तो हमारे जिस्म से वो निकली, हमारे जिस्म घिसा है। जैसे इंजन घिसता है गाड़ी का और एक ख़ास वक़्त के बाद उसे दोबारा से रिपेयर करवाना पड़ता है, ऐसे ही हमारा वजूद भी घिसता है हर वक़्त। और इससे जो फ़ुज़लात होते हैं, वो हमारा जिस्म का वो हिस्सा होते हैं, ये मुर्दा हो चुके होते हैं। इन्हें हमारा जिस्म मुर्दा समझकर ख़ारिज कर देता है और नया पैदा करने के लिए ग़िज़ा की तलब होती है। इस वजह से हम कहते हैं फिर आज़ा बनते हैं। यानी पहले कैफ़ियत बनी, फिर इख़लात बने, फिर आज़ा बने। आज़ा जब घूमते हैं, यानी कोई भी जब पहिया घूमता है, कोई भी चीज़ जब चलती है, तो उससे एक ताकत जन्म लेती है। व्हील जब घूमता है, आप इसे फिजिक्स में चले जाएं कि कोई भी चीज है जब हरकत में आएगी तो वो हरकत किसी ताकत की बुनियाद पर होगी।
और जो एनर्जी होती है एक दूसरे में तब्दील होती रहती है, आज़ा बनेंगे। आज़ा जब वो हिलेंगे, जैसे मैंने बताया था, जब आदमी ऐसे हाथ हिला के चलता है, पाँव हिलाकर चलता है, तो ये जनरेटर जो हमारे अंदर लगे हुए हैं, ये जिसे गोश्त कहते हैं, मछलियाँ कहते हैं, ये पावर पैदा करते हैं और उस पावर के लिए ग़िज़ा तलब करते हैं। जो कि कार्बन की सूरत में ग्लूकोज जो हमने खाया है, वो ग्लूकोज आखिर में ग्लूकोज बनता है, जो हमारे जिस्म में जज़ब होता है या बतौर ईंधन जलता है। तो उस ईंधन की बुनियाद पे जैसे हम जनरेटर में डीज़ल या वो इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से डीज़ल या पेट्रोल हमारी ग़िज़ा है। अज़ा बनते हैं, जब वो अज़ा काम करते हैं, फिर अरवाह बनते हैं, अरवाह से फिर क़ुव्वत जन्म लेती है। यानी जब वो व्हील घूमता है, तो उसमें एक ख़ास पावर आ जाती है। तो फुल तेज घूमते हुए को इतनी ताकत से रोकना पड़ता है जितनी ताकत से वो घूम रहा है। अगर आप कम ताकत लगाएंगे तो वो पछाड़ देगा। तो उस अरवाह से वो जो घूमा है उसे कुव्वत पैदा बनी और जब वो कुव्वत पैदा हुई तो उससे फ़ेल सादिर हुआ, यानी जब पंखा घूमा तो उससे हवा आई, कोई चीज़ जो है ना शाफ्ट घूमी तो उससे हम अपना कोई काम लेते हैं, जैसे पंखा चला या आप घरों में आप वॉशिंग मशीन लगा ले, मशीनरी में शाफ्ट चलती है और वो चीज़ चलती ऐसे। और कुव्वत से फ़ेल सादिर होता है, यानी जो चीज़ हम चाहते हैं उसे फ़ेल कहते हैं। अब ये कुल 6 मरातिब हुए। तीनों अज़ाए रईसा पर मुनक़सिम है। एहसास का होना यानी आसाबी उज़लाती, हुक्म का होना, इरादी हरकत। ये जो आसाब का एहसास और हुक्म होना, ये आसाब का काम है। इरादी हरकत, गैर इरादी हरकत या उज़लात का काम है। ग़िज़ा को जज़ब करना यानी हज़म करना और फ़ुज़ले को ख़ारिज करना, ये गुदुद का काम है। पानी, हवा, हरारत की बदौलत जिस्म का निज़ाम चल रहा है। यानी पानी भी होगा, हरारत भी होगी और उससे जो भाप बनेगी उससे हमारा जिस्म ताकत लेगा, यानी स्टीम सिस्टम हमारे यहाँ अंदर चल रहा है। इनके हद एतदाल से कम या ज़्यादा होना मर्ज़ यानी बीमारी कहलाता है। जो इस राज को समझ गया, वो किसी भी मर्ज़ का बफ़ज़्लिही ताला इलाज कर सकता है। अब इसमें आसाबी खुद्दी यानी ऐसा मर्ज जिसे गर्मी के अमराज हों, जिगर उसका बहुत ज्यादा सुफरावी अमराज हों, उसमें मगजियात, हलवा बादाम, मुरब्बा सेब, मुरब्बा अदरक, दूध, खोया, सूजी का हलवा, खजूर, ये सुबह नाश्ते में आप दे सकते हैं। दोपहर में भिंडी, तोरी, पेठा, उरवी, लसूड़ा, मूली, कद्दू, तोरी, मूंगरे, गंदम की रोटी, माश की दाल, गाजर, टिंडे, दलिया, लोबिया, मूंग साबत, जवी और गजरेला, समिया, सोन हलवा, बिस्कुट, डबल रोटी, पेठे की मिठाई, चर्बी, बादाम, रोगन बेरोजा, मगजिया, शरबत चूना, ग्राइप वाटर और सत्तू, आब जो यानी सत्तू जो आम हमारे देहातों में है। शाम को फलों में केला, अमरूद, नाशपाती, खरबूजा, गरमा, बग्गू-गोशा, खुबानी, ताज़ा, सरदा, आड़ू, शहतूत, रसभरी, इलायची, खुर्द, छोटी इलायची जिसे सब्ज़ इलायची कहते हैं। आगे है जी आसाबी उज़लाती यानी तहरीक आसाबी उज़लाती यानी अंडा की सफ़ेदी, सागवाना, चावल वग़ैरह। ये मैंने आपको बताया था कि जो आसाबी अमराज़ हैं वो क्या हैं। अगर आसाबी अमराज़ हैं तो उन्हें खुद्दी आप दे सकते हैं, उज़लाती दे सकते हैं। अगर जो उज़लाती हैं उनमें आप खुद्दी दे सकते हैं, आसाबी दे सकते हैं। ऐसे ही जैसे आप दवा तजवीज़ करेंगे ऐसे ही उन्हें ग़िज़ा दें। ग़िज़ा की अहमियत दवा से ज़्यादा है। दवा आदमी खाता है, इतनी खा लेगा, इतनी खा लेगा, 50 ग्राम खा लेगा, आधे 50 ग्राम इतनी सारी होती है, कम नहीं होती। ठीक है ना? छटाक होती है पूरी। तो हमारी जो उमूमी तौर पे पुड़िया होती है 2 ग्राम, 3 ग्राम की, इससे ज़ायद नहीं होती। वो उसमें दवा की इतनी जो है ना वज़न नहीं होता है कि वो 3 ग्राम की पुड़ी बन सके। वो बहुत भारी हो जाती है। तो अब एक आदमी 3 ग्राम दवा खा रहा है। आप हल्दी, सौंफ, मलट्ठी लगा लें, जीरा सफ़ेद लगा लें, आप लौंग दालचीनी लगा लें, कोई भी चीज़ है जो आपके नुस्खे में है। अब वो आप खा रहे हैं। एक तरफ आप आसाबी दवाई खा रहे हैं जिगर के अमराज के लिए कि ताकि जो मेरे जिस्म में आग लगी हुई है, सुफरावी अमराज हैं, आप उसके लिए दवा